السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک نیک عورت اور اس کے یتیم بچوں کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لخت جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا؟ کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہے طرح دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، 2 آنے، مائیوں بیٹیوں بہنوں، 2 4 آنے، چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ 2 آنے 4 آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟
आबादी लोगों पे देखा कि कफन ना मिला, कब्र ना मिली, जनाजा ना मिला, तो अल्लाह की हुजूर में खैर नहीं मांगता? हर मुसलमान को अल्लाह कब्र भी, जनाजा भी नसीब करे, कलमा भी नसीब करे, आमीन कहो। बहरहाल हालात हैं, दिल में खौफ खाया करो। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, पहचान तक नहीं होती। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की जमात तो ऐसी जमात थी, अल्लाहु अकबर। एक जंग में इत्तला मिली भाई की तरफ से कि तेरा भाई प्यासा है और जख्मी है, वो पानी लेके दौड़ा। ये उनकी बात है, हमारी नहीं, हमारी नहीं है, ये उनकी बात है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ा, जिन्होंने चमड़े उधड़वा कर कलमा पढ़ा, जिन्होंने आग के अंगारों पे लेट के कलमा पढ़ा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पे लटकता हुआ देखकर कलमा पढ़ा। इत्तला मिली प्यासा है भाई, पानी मांग रहा है, आखिरी वक्त है, ये पानी लेके दौड़ा, तलाश किया, मिल गया, बर्तन में पानी डाल कर दिया, बराबर में पड़े हुए दूसरे जख्मी ने भी आवाज लगा दी, भाई अपना भी आखिरी वक्त है, 2 घूंट पानी अगर ज्यादा हो तो मुझे भी देना, मैं भी हलक गिल्ला कर लूंगा। जिसने पानी मंगवाया था, जिसके लिए पानी लाया था, इशारा कर दिया कि मेरा अल्लाह मालिक है, इसके पास चला जा, इसको पिला। उसने पानी लिया और पीने का इरादा किया, तीसरे ने आवाज दी, भाई 1 घूंट पानी हो तो हमें भी देना। उसने दूसरे ने भी इशारा कर दिया, पहले उसको पिला। जब उस तीसरे के पास गया पिलाने वाला, तो वो हौज़े कौसर पे जा चुका था, वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका था। वापिस आया, वो दूसरा भी खत्म, वो तीसरा भी खत्म। तमाम के तमाम ने ये साबित कर दिया कि वो हौज़े कौसर पे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन अपने भाई की प्यास को सुनकर खुद पानी मरते वक्त भी न पीते थे। ये उनकी खसूसियत है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिगर, उनके गुर्दे, उनके दिल इतने साफ कर दिए थे निगाह नबूवत से कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। बदकिस्मत कौम सहाबा इकराम की कदर नहीं जानती। तुम्हें क्या मालूम कि ये कौन लोग थे, ये किसके शागिर्द हैं, किसके मुरीद हैं, किसके मुक्तदी हैं, किसके वजीर हैं, किसके मानने वाले हैं। बस तुम्हें तो अपना पता है कि मेरा दाव लग जाए बस। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरा सहाबी एक खजूर अल्लाह के नाम पर सदका करे, खैरात करे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका खैरात करना मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। इतने अजीम लोग, उनकी शराफत, उनकी जानत, उनकी अमानत कुरान बयान करे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करे। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, इधर हिजरत करके गए हैं। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रखने को तो क्या था। उधर जंग रमजान का महीना आ गया, उधर जंग बदर का ऐलान हो गया। सबसे पहला जंग, सबसे पहली लड़ाई जंग बदर है जो 17 रमजान मुबारक को हुआ है। सहाबा इकराम ने तो ये ना सोचा रमजान का महीना है, चलो बाद में लड़ाई कर लेंगे, या रोजा छोड़ देंगे, बाद में रोजे रख लेंगे। नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजूद इजाजत अता फरमाने के फिर भी सबने रोजा रखा। मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया। एक औरत आती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में,
اور आके अर्ज करती है आप अपना हाथ फैलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फैला दिया, उसके ऊपर अपने सर के कटे हुए बाल रख दिए और रो के अर्ज करने लगी गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मुफलिस हूँ, नादान हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ, खाने को भी नहीं। कई दिन से मदीने में सुन रही थी ऐलान हो रहा है जिहाद का, कोई राशन लाया, कोई खजूर लाया, कोई दाना लाया, कोई असला लाया, कोई पैसा लाया, कोई टका लाया। मेरे पास तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अपने सर के बाल काट के ले आई हूँ, किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाएगी, रस्सी बन जाएगी, मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। कहां से ऐसी औरत लाएंगे आप? सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, शाम का वक्त है, मगरिब की नमाज पढ़ी, रो रही है। बेटों ने पूछ लिया अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों रंजीदा हो? बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ, तुम्हारे बस की नहीं। उन्होंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? अम्मा रो रही हो, हम रोटी खाएं? बड़ी देर के बाद फरमाया 3 दिन हो गए मदीने में ऐलान हो रहा है जिहाद होगा, अल्लाह के नाम पर लड़ाई होगी, मेरे घर में कोई भी नहीं, तुम बच्चे हो, यतीम हो, मैं बेवा औरत हूं, क्या करूं? उन्होंने कहा जैसे हुक्म हो। कहने लगी फिर मेरी तो ये तमन्ना है, तुम मेरे यतीम बच्चे हो, मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया हो, मेरी यतीम पूंजी हो, चलो मैं तुम्हें दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके चलती हूँ, अल्लाह के नाम पर पेश कर देती हूँ बेवा की यतीम पूंजी। अगर अल्लाह के रसूल के यहाँ मंजूर हो जाए तो और क्या चाहिए? उन्होंने कहा अम्मा हम तैयार हैं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने यतीम बच्चों को लेके चली दरबारी रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर के कहती है या रसूल अल्लाह है तो छोटे, ताकतवर भी नहीं, जवान भी नहीं, मैं बेवा की यतीम पूंजी कबूल फरमाओ, जिहाद के लिए इन्हें कबूल फरमाओ, इन्हें ले जाओ, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ। आपने फरमाया ये तो अभी छोटे हैं, ये तो अभी बच्चे हैं, खुदा की कसम इनकी औलाद का जिगर देखो, इनकी औलाद के दिल देखो, औलाद की तरबियत देखो, यूं एड़ियां उठाकर खुरियां चूक उठा के बड़ियों ऊपर को हाथ करके दिखाते या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। और सहाबा की औलाद भी देखो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिए। हजरत खनसा अलग लेके गई दोनों बच्चों को और कहने लगी मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ कि अम्मा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मेरे से कसम ले लो मैंने एक दिन भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया तुम्हें, मैंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, तुम्हारे अब्बा की अमानत में खयानत नहीं की, हलाल का तुम्हें जना है। मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, सुन लो, पीठ में जख्म ना खाना, छाती में जख्म खाना, सीने में जख्म खाना, शहीद हो जाना। मैं मुसल्ले पे बैठकर वुजू करके इंतजार करूंगी, एक एक की शहादत की खबर सुनती जाऊंगी और कबूलियत के लिए झोली फैलाकर दुआ मांगती जाऊंगी। चुनाचे दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हो गए जंग में। हजरत मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी, हुजूर ने फरमा दिया सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दिया इन दोनों बच्चों का जरा ख्याल रखना कि अच्छा जी। एक को दाएं खड़ा कर लिया, एक को बाएं खड़ा कर लिया, बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि चाचा जान वो अबू जहल कहाँ है, वो अबू जहल कौन सा है? ख्याल आया इन्होंने नाम सुना है, बच्चे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भतीजों यतीमों जब इधर को आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देख लेना। वो आया सर्कस घोड़े पे सवार, उछलता हुआ कूदता हुआ घोड़ा आया और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा कर दिया कि जिसको तुम पूछ रहे थे वो सामने अबू जहल है।
उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है, और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दाया बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। हफीज कहता है कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी, और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी, और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन
मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए, बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनजिलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मैदान बदर में सरकार मदीना, सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बोझ ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं? हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा और क्या तेरा रमजान करेगा? कहां काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। साहब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है।
यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। वाक़यात हैं सहाबियात के बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। तो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात भी इसी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका? 2270 हदीस हैं जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिदरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कृष्ण में मोजज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, जरा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाकया हुआ है, एक किस्सा हुआ है। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियां मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। तमाम लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, ज्यादा लकड़ियां मंगाई, फिर ज्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उनने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। वहां गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं हैं। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताजा जाला आला कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतजाम न किया, औलाद का इंतजाम न किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे खत्म कर देंगे। आखिरी वक्त में हिफाजत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया, किसी काफिर का पलीत हाथ अल्लाह के पाक कुरान को ना लगने पाए। अदब किया, एहतराम किया, इकराम किया, इज्जत की। उन्होंने कुरान खोलकर जब देखा, मजबूरन बुलाकर 2 दफा तो तजर्बा कर चुके थे, मुसलमानों को बुलाकर कहने लगे ये कलमे वाली है, ये कुरान वाली है, ये ईमान वाली है, हमारी नहीं है, तुम ले जाओ, इसका दफन कफन तुम खुद करो। वहां लोगों ने जनाजा पढ़ा और फिर कब्र बनाई, उसको कब्र में दफन किया। बताना ये चाहता था, खसूसन औरतों को ये बताना चाहता था कि ये बात सही नहीं कि हम ये सोच लें कि ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी।
یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے۔ آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے۔ آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ، آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا۔ کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا۔ جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک۔ جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا، کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں، دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا، میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں۔ کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے؟ تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا؟ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا۔ اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی، تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے، کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا۔ کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں، ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی۔ 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے۔ آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی، عورتوں کی، مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں، نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا؟
जिसका कुरान सुनकर नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और बुलाते हैं कुरान सुनने के लिए। और जिससे कुरान नबी सुने वो कैसा कुरान पढ़ता होगा। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर सहाबा किराम को काफिर लोग धोखे में डाल कर ले गए, पहाड़ों के दरमियान में ले जाकर हमला कर दिया। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में जिसने नेज़ा मारा वो कसम खाकर कहता है मैंने पेट में नेज़ा मारा, कमर के पीछे निकल गया। इस जवान का ईमान देखो, यकीन देखो, कुरान से ताल्लुक देखो। इतना बड़ा जख्म आया, पेट में से गुजर कर भाला, नेज़ा बरछा पीछे निकल गया। आह ना की, उफ ना की, हाय ना की, धार ना की, दर्द का इजहार न किया, करब का इजहार नहीं किया। इतना फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, फुदतु बिरब्बिल काबा, और दुनिया वालों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अंदाजा लगाओ, आमिर बिन तुफैल नेज़ा मारने वाला कहता है मैंने नेज़ा वापस निकाला तो सहाबी की रूह परवाज कर गई, शहीद हो गया। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, खंजर लाओ, तलवार लाओ, सर काटो, खोपड़ी अलग करेंगे, इसमें शराब पिएंगे। ये वो कुरान पढ़ता था। हजारों लोग कुरान सुनकर मुसलमान बने, हजारों आदमी इससे कुरान सुनकर नमाजी मुसलमान बने। इसकी खोपड़ी में शराब पिएंगे, तलवार उठाई, खंजर उठाए, तैयारी की। सहाबी जवान कहता आमिर बिन फहीरा की मैयत और लाश खुद ब खुद आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। सहाबी कहता है हमारी नजरें जवाब दे गई, आमिर बिन फहीरा की परवाज खत्म ना हुई। दोस्तों आज का बयान पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कोई बयान के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।